Afternoon, sir. Morning. How are you, everyone? Am I audible to everyone? Yes, sir. Thank you. Please mark your attendance in the chat box. It's my humble request to you, a reminder to all of you. So today, yesterday we went through procedure-oriented programming. ठीक है, प्रोसीजर-oriented प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास प्रोसीजर-oriented प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होती थी। एग्जांपल के तौर पे सी हो गई, ठीक है, और आपका फोर्ट्रान हो गई, पास्कल हो गई, ठीक है। तो दीज वर फ्यू लैंग्वेजेस। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ब्यूटी ये थी कि वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होती है, और आप उसको इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन एंड अगेन। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। First, we will now today we will discuss about the object oriented feature, or you can say object oriented programming. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है that is much better than procedure oriented because of its features. तो फीचर्स कौन कौन से होंगे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। लाइक first step is like there is a emphasis is on data rather than procedure. ठीक है, so this one is very important to understand कि जो भी आपका यहाँ पे वर्क हो रहा है that is actually we are keeping our focus on the data part, like क्या डेटा हमारा मूवमेंट कैसे होगा, कहाँ पे होगा, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे मूव करना है, ठीक है। जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर हम ना फोकस करते थे प्रोसीजर पे कि नहीं टास्क का ऑर्डर क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर कैसा है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब था उसके अंदर, ठीक है। और वहां पे हम टास्क को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते थे, बड़े प्रोग्राम को। बट हियर वी आर डूइंग इट इन अनदर मेथड, लाइक प्रोग्राम is divided into what? It is divided into objects. It is divided into objects instead of functions. ठीक है, थर्ड थिंग इज लाइक डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज करते हैं इसके अंदर, डेटा स्ट्रक्चर are designed in such a way that they characterize the objects, that they characterize the objects. Okay. These are few definitions right now we are discussing, don't worry, and we will realize them once we start coding it. तो कोडिंग करने से पहले थोड़ा सा हमें theoretically आइडिया चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट writing here some points for you, ठीक है।
Next thing is data is like data can be hide in this pattern. So data is hidden in OOPS, object-oriented programming system, where it was not where it cannot be hidden in procedure-oriented, where it was not hidden okay in procedure-oriented approach. This is another characteristics of OOPS, like okay, in comparison to procedure-oriented programming. दूसरी बात, it follow the approach of bottom-up approach instead of top-down. Like it follows the bottom-up approach instead of top-to-down approach. Those who have recently joined, please mark your attendance in the chat box. Like Vinay, Saksham, Virant. ठीक है? So these are the few features like which are quite important and which gives us, you can say, much better flexibility in comparison to the procedure-oriented programming. So it is much better than that. And a part of that we have few concepts also, like basic concepts भी यहाँ पे आते हैं. तो basic concepts के अंदर कुछ terminologies हम लोग discuss करेंगे. ठीक है? Basic concepts of object-oriented programming. So what are these basic concepts? We'll write them one by one, then we will discuss them one by one. Okay. First of all, I will write down here. Like first and the foremost thing is objects. Second is classes. Third property is, you can say, data abstraction. ठीक है? Fourth property is encapsulation. Fifth property is inheritance. Sixth property is polymorphism. Seventh property is dynamic binding. Eighth property is message passing. Ninth property is exceptional handling. ठीक है? So these are few properties which you must understand in order to work on object-oriented programming concept. ठीक है? These are the few features. अब ऐसा नहीं है कि देखिए ये फीचर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, क्लासेस होती हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है, लाइक इट्स द फीचर वी यूज, एनकैप्सुलेशन इज अ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट, मैंने ऑलमोस्ट कहा, मैंने 100% नहीं कहा, ऑलमोस्ट आपको सारी लैंग्वेज में मिलेंगी, वेदर इट इज जावा और इट इज C#, ठीक है, और इट इज PHP और इट इज Python, whatever the language is, if these language support the feature of object-oriented programming, then obviously ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. अब इसमें ऐसा तो हो सकता है कि इन प्रॉपर्टी की जो सब प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ लैंग्वेज कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं. जैसे इन केस ऑफ जावा, इनहेरिटेंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि जावा, C++,
या पाइथन के कंपैरिजन में सपोर्ट नहीं करती है एक दो चीजों को, अदरवाइज मैक्सिमम को करती है। सी शार्प करती है। एक चीज और समझिए, कोई भी लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज क्लेम करती है कि क्लेम करते हैं सारे सारे लैंग्वेज वाले कि दे आर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दे आर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और जब जिसमें सबसे ज्यादा जो क्लेम करने वाला है वो जावा है, ठीक है। और जावा ही कम से कम 2 या 3 प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बट दे ऑलवेज क्लेम इन द मार्केट दैट वी आर द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, अभी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया, अभी आप बोलेंगे कि क्यों नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि साहब अगर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाई सम लैंग्वेज इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस कॉन्सेप्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब हम सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली रियलाइज करेंगे बाय राइटिंग कोड और बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द कोड आउटपुट, अदरवाइज उसको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी। बट अभी आप ना समझिए, इतना आप थोड़ा माइंड मेकअप कीजिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो वी विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब मैं आपको उनका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत माइनर सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हमें डिटेल के अंदर ये वन बाय वन बाद में पढ़ना है। ठीक है, सो जस्ट अज्यूम के ठीक है ऐसा ही होता होगा अल्टीमेटली। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज अ आइडेंटिटी ऑफ सम क्लास। हम डेटा को क्लासेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले क्लासेस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्लासेस बेसिकली क्या होती है? क्लासेस हमारे पास, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट इज अ बॉक्स। ठीक है, इट इज अ बॉक्स वेयर वी हैव पुट सर्टेन डेटा इनसाइड द बॉक्स। हमने कुछ डेटा इसके अंदर रखा हुआ है एंड दैट डेटा इज बेसिकली कॉल्ड क्लास। इस डेटा को, इस कंटेनर को हम क्या बोल देते हैं? क्लास कह देते हैं। ठीक है, अब इस कंटेनर का कुछ ना कुछ तो नाम जरूर होगा, वो क्लास का नाम होता है। लेकिन इस कंटेनर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक एंटिटी की नीड पड़ती है जिससे ये रिकॉग्नाइज होता है, आइडेंटिफाई होता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू prominent and primary properties of a object oriented programming concept, that there would be classes where we are going to store our data. That data might be stored in form of data types, variable, functions, it could be anything, like, but it would be available inside a class, है ना? And there would be always a name for every class. For every class there would be a name, definitely. Whenever we want to access any class, जब भी हम इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इसे वाया ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल, मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम है सपोज करो एड। एड मैंने क्लास का नाम लिख लिया, कोई भी कीवर्ड रख लो, या मैं दानिश रख सकता हूँ सपोज करो, आई एम नॉट यूजिंग इट, like if you don't want to take add, let us take another word, like I'm putting my name here, so this is the name of class, and we can make an object. How? We can put a single word like d1. d1 could be object. d1 क्या हो जाएगा? ये क्लास कीवर्ड है, ये क्लास का नेम है, और ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। We can create many objects as much as we want, like we can create another object as d2, then d3, or abc, whatever you want to put. It's up to you how much comfortable you are while writing a name of an object. आप ऑब्जेक्ट का नाम क्या चूज करना चाहते हैं, ये आपकी कंफर्ट जोन के ऊपर डाल दिया कंपाइलर ने, कुछ भी रखिए। लेकिन ये सारे d1, d2, d3, abc जो भी है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। किसके? क्लास के। और यहाँ पे क्लास का नेम क्या है? दानिश। ठीक है, तो अभी हम इसे यूज कैसे करेंगे बाद में देखते हैं, बट अभी आप फिलहाल छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास का समझिए। हमें क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, क्लास का नेम दिया जाता है, और क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काम करते हैं। सो दैट वाज अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इफ इट इज नॉट, प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. Okay, so let us move further. ठीक है, next thing is data abstraction. Data, can somebody tell me what is the meaning of abstraction? Abstraction किसे कहते हैं? कहीं से उसको यूटिलाइज करना।
Your voice is not audible in proper manner. Please speak bit louder. Anyone? Sir, hiding unwanted details and just showing the important or essential ones. Okay, Shita. Thanks. Anyone else? Okay, look. Abstraction is a property where we people present something without detailing its background. ठीक है, मेरे सामने सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि कोई कैंपस हो रहा है, सपोज करो उस कैंपस में हम आपको इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टेलिंग हिम और हर दैट दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। अब वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वगैरह बताया कि साहब आपका नेम क्या है, आप कौन सेक्शन में है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई लीव क्लास एट 1, डोंट वरी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन, कि हमने आपको प्रेजेंट कर दिया साहब, और हम आपको प्रेजेंट करने के बाद ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिटेलिंग क्या है। दैट टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली कॉल्ड एज एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंड इफ यू आर अलाउंग और इफ यू आर यूजिंग इट एट डेटा लेवल, देन इट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रक्शन। डेटा एब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होना ही होना है। आप सकते नेवर, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफिकल्टीज को ओवरकम करती है। जैसे अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि अगर आपने उसको कोड किया होगा, अच्छी तरह पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज अच्छी तरह पढ़ी होगी, तो उसके अंदर ऐसा मुमकिन नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपने पॉइंटर का इस्तेमाल ना किया हो। इज इट पॉसिबल to study or implement data structural algorithms or code without using pointers? No, sir. No, not at all. Because आप लिंक लिस्ट ले लीजिए, ट्री ले लीजिए, whatever you're taking क्यूज ले लीजिए, आप हर जगह उनका इस्तेमाल करते हैं। आप एड्रेस को पॉइंट करते ही करते हैं डेटा के, आप डायरेक्टली डेटा कॉपी नहीं करते हैं। you're not using call by value, instead you are using everywhere call by reference concept, है ना। in similar manner, but this was very headache part, like I don't want to use pointer से, pointer के अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉपर वे में उसको मैनेज करना होता था, तो इस वजह से, और ज्यादातर कोडर्स को परेशानी होती थी, लाइक इंटेलेक्चुअल बंदे यूज करते थे, बट जो बहुत मिड लेवल के बंदे होते थे वो उसको उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई जावा रिमूव्ड पॉइंटर्स, जावा ने पॉइंटर से कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, बोलते हटाओ यार। दैट वाज जावा बिकेम सो पॉपुलर, like they removed the concepts of pointer. You can use pointers in C and C++ both, but there's no scope of pointers directly in the Java. That's why Java became popular, है ना। तो कोई ना कोई पुरानी लैंग्वेज जैसे C के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम C++ ने किया, C++ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम जावा ने किया, जावा की प्रॉब्लम्स को ओवरकम पाइथन ने कर दिया। तो अभी जो हाई एंड लेवल लैंग्वेजेस चल रही हैं वो सबसे ज्यादा ईज यूज के अंदर चल रही है। रीजन है कि एक स्टूडेंट जो कि जिसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल का है, और आपका इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये स्टूडेंट्स भी इन्फोसिस के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट, though they have done their engineering from electrical, from civil, from mechanical, from instrumentation, from mining. Despite of that, they are doing great code, writing a very good code in Infosys. What is the reason? Because programming languages right now are much more comfortable than previous ones, and they are providing so many features in a easy way that you can just put it, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज C++ के अंदर आपको थोड़ी सी हो सकता है कि प्रॉब्लम के साथ यूज करनी पड़े या थोड़ी मेहनत करनी पड़े, बट अगर आप जावा देखेंगे तो उसके पाइथन देखेंगे तो बिल्कुल ही इजी वे में यूज करते हैं, है ना। बट दिस इज द श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू यूज इट एवरीवेयर। देन वी हैव एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज व्हाट इट इज बेसिकली रैपिंग अप। आई हैव सीन ओनली 47 स्टूडेंट्स हैव पुट देयर, ठीक है, ओके, जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की प्लीज एक बार मार्क कर दें, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। हैव यू सीन कैप्सूल? लाइक कैप्सूल जो है एक मेडिसिन जो आप कई बार डॉक्टर आपको देता होगा, तो कैप्सूल के अंदर दवाई देता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपर होता है और आप कैप्सूल खा जाते हैं, बाकी दवाइयां आपको वैसे मिलती हैं, ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर हीट दवाई डाल के क्यों दी जाती है? क्योंकि वो दवाई ऐसी होती है जिसको आप अगर मुंह में रखेंगे तो हो सकता है कि आप उसको खा ही ना पाए,
इतनी ज्यादा कड़वा केमिकल होता है वो कि आप उसे बर्दाश्त हो सकता है, आप उसे वोमिट कर दें या ना यूज कर पाए, तो उसे एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। जो कंटेंट होता है, जो केमिकल होता है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, उसे कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। इन द सेम वे, एक क्लास के अंदर जब मल्टीपल डेटा एक साथ हम पुट अप करते हैं तो उस डेटा को हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं। we'll see it once we write code, तो उस कोड के अंदर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनकैप्सुलेशन। we'll discuss it in detail in after this lecture। ठीक है, then inheritance is a property like where you are just retrieving the properties from the ancestors। आप अपने पुराने लोगों से वो डेटा या प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे आप घरों में अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी का मकान है, जो भी है, खेत वगैरह है, तो जो भी दादा थे तो उससे वो आपके फादर को मिला, फादर से आपको मिलेगा, आपसे आपके प्रोजेनी को मिलेगा, ऐसे वो ट्रांसफर होता रहता है, चलता रहता है। तो एवरी टाइम नोबडी इज जनरेटिंग न्यू प्रॉपर्टी, एवरीबडी इज व्हाट डूइंग, इनहेरिटिंग दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास यूज कर सकती है, बट हाउ? बाय इनहेरिटिंग दैट डेटा। ठीक है, तो दिस कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत टाइप का होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है, सिंगल होता है, हम उसको देखेंगे कैसे के वो काम करता है, बट दैट इज प्रैक्टिकल पॉइंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म इज अ थिंग लाइक यूजिंग अ सेम नेम फॉर अगेन अगेन, मल्टीपल टाइम्स आप सेम नेम यूज कर रहे हैं बट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइक मैं लिखूं संजय, संजय एक नेम है, ठीक है, तो संजय के आगे संजय सिंह अलग हो गया, संजय शर्मा अलग हो गया, संजय नागर अलग हो गया, है ना। तो name is common, it is Sanjay, but the attribute or the surname is different, that is why all three Sanjay are different। संजय सिंह अलग है, संजय वर्मा अलग है, संजय शर्मा अलग है, संजय नागर अलग है। हर एक बंदा अलग कैसे काउंट हो रहा है, उसकी अपनी कास्ट की वजह से या फिर सरनेम की वजह से वो क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वी कैन यूज सेम नेम ऑफ अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स, बट विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। द प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। देन वी हैव डायनेमिक बाइंडिंग। रन टाइम की बाइंडिंग को हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि आपकी रियल टाइम के अंदर जब आप डेटा कंपाइल या एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू पीपल आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये आप सी में भी यूज करते हैं, बट आपको इतना पता ही नहीं चल पाता। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया आपने, अभी कंपाइलर को नहीं पता प्रिंट एफ क्या काम कर रहा है। कंपाइलर पूछता है stdio.h से कि भाई बताओ इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, तो stdio.h जो हेडर फाइल है वो बताती है कि प्रिंटफ का काम क्या है। तो वो रियल टाइम में डायनेमिक बाइंडिंग होती है, डायनेमिकली होती है, स्टैटिकली नहीं होती है, डायनेमिकली होती है। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है कुछ चीजें उस टाइम पे जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी उनसे जो मैप किए जाते हैं वो डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, मैसेज पासिंग, लाइक वन क्लास और ऑब्जेक्ट कैन पास अ मैसेज टू डिफरेंट क्लास और ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली दिस कॉल्ड मैसेज पासिंग। विल सी। देखिए ज्यादातर कॉन्सेप्ट एक अच्छा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के अंदर आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हाँ उनको डिटेलिंग के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी और बेटर प्रॉपर्टी जो कि सी के अंदर नहीं थी और C++ से इंट्रोड्यूस हुई, दैट वाज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग उन प्रॉपर्टी फीचर्स को हम लोग बोलते हैं जिनके अंदर आप किसी पर्टिकुलर चीज का रिमाइंडर देते हैं। रिमाइंडर किसको देते हैं? जिस चीज से आप बार बार जो मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। एग्जांपल, आप कैलकुलेटर के अंदर जो है जीरो को डिवाइड करें किसी चीज से, बार बार करे जा रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे, तो ऑफ कोर्स या तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, या फिर आंसर जीरो आएगा। तो ऐसी जहां यूजर गलती कर सकता है और हमें वो गलती नहीं करवानी है, ऐसे कोड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं किसके अंदर? एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर के थ्रू मैनेज करते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ से स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेज अभी तक निकल चुकी हैं सबके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। लाइक जहां जाए यूजर डम यूजर हो सकता है। डम का मतलब इधर ही इज नॉट वेल एजुकेटेड टू यूज द सॉफ्टवेयर और ही इज डूइंग इट इंटेंशनली, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहता, तो ऐसे यूजर को हम डम यूजर कहते हैं। ठीक है, उस बंदे ऐसे ही लोगों के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो दीज आर 9 प्रॉपर्टीज लाइक, और इनके प्रॉपर्टीज के पूरे कह लीजिए वजूद पे या इनके एग्जिस्टेंस पे ही आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो टिका पड़ा है। अगर आपको सब समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि आप C++ के अंदर बेहतरीन कोड लिखेंगे, लाजवाब कोड लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
or you will be a good programmer of C++. And don't think that C++ का scope खत्म हो चुका है. It is still using. I told you yesterday, we are using C++ in ATM machines. We are using it in photostat machines. We are using it everywhere. Almost, in fact, in a single line, I will say, we are using C++ in real-time operating systems. अभी real time operating systems क्या होते हैं? We'll see them some other time. Just note it down somewhere in the copy and remind me in the next class. I'll explain you in detail about it. Got it? इसके अलावा देखिए जो कोड लिखने को मैंने आपसे कल कहा था, तो this is a IDE known as CodeBlocks. CodeBlocks is a wonderful platform. You can install this in your laptops or desktop. ठीक है? इसका ये इस तरीके से आपको देखिए मिल जाएगा, आपको इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी, आपको सेटअप मिल जाएगा इसे बोलते हैं. एंड दिस इज ऑफ अराउंड 145 MB. ठीक है? तो कोड ब्लॉक्स इज एन आईडी, इट इज नॉट अ कंपाइलर, है ना, इट इज एन आईडी. कोड ब्लॉक्स it is an ID and you can attach any compiler with it. It will start coding. ठीक है? C++ और Fortran के लिए यूज की जाती है, but you can use whatever you want ultimately, है ना. डाउनलोड्स पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड का पेज मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है? बाइनरीज पे क्लिक करेंगे. विंडोज पे आप नीचे आएंगे तो विंडोज के वर्जन है. ठीक है? तो यहाँ से आपको, अगर आपका कोई कंपाइलर पहले से टर्बो सी या कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको ये वाला एडिशन डाउनलोड करना है, कोड ब्लॉक्स 20.3. ठीक है? और सॉरी ये वाला कोड ब्लॉक्स 20.03 MinGW. MinGW इज अ प्री इंस्टॉल्ड कंपाइलर कमिंग विद इट. अदरवाइज इसका साइज सिर्फ 60 MB है और आप कंपाइलर के साथ डाउनलोड करेंगे तो देखिए 145 MB का साइज आपको मिलेगा. ठीक है? तो यू कैन कोड ईदर ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप और यू कैन कोड इट ऑनलाइन. अल्टीमेटली इट्स अप टू योर चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए. तो दिस इज आईडी कोड ब्लॉक्स. यू कैन राइट अ न्यू फाइल, लाइक यू कैन राइट एम्प्टी फाइल, यू कैन राइट अ क्लास और प्रोजेक्ट व्हाटएवर. हम एम्प्टी फाइल लेते हैं. यहाँ कोड लिखा जाता है इस विंडो के अंदर और ये नीचे की विंडो आपको आउटपुट दिखाती है. आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा. यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कोड लिखा जाएगा. तो ट्राई टू डाउनलोड इट और इसको इंस्टॉल कीजिए. इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो सो दैट वी कैन फिक्स इट. ठीक है? I think next class is from 1 PM and due to some campus is going on today in the college, एक placement drive चल रहा है अभी, आज कंपनी आई हुई है, so that's why I was a bit busy there. That's why I scheduled my class at 12:30, otherwise 15 पे करता. ठीक है everyone, thanks a lot. We'll meet tomorrow most probably. Thank you.